मतलब आई नो क्विंटेसेंस, यू आर द फेस ऑफ क्विंटेसेंस, तो यही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए थे, मैंने उनको भी देखा था, लेकिन आपने जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो आपने डाले थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे। उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलता है। मेंबर्स थे आपके बोर्ड में जो ले रहे थे, मैंने देखा था, काफ़ी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स थे। आप खुद, आपके जो सवाल पूछने का अंदाज़ था, वो एनालिटिकल था, फैक्चुअल नहीं था। जहाँ पे ट्रू पर्सनैलिटी निकल के आती है, जो कि एक इंटरव्यू की डिमांड है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव नथिंग टू ऐड अपॉन दैट। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब फॉर द सोसाइटी। या Good evening, Vishal. How are you? हेलो सर, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? I'm great. Thanks for coming. First of all, congratulations for your brilliant success. You're rank 3. Is that correct? या Great. You've achieved rank 3 in 2021 case examination. How does it feel? Just share your feeling right now. इन वन वर्ड, ऑसम। Great. Rest you can see it from my facial expressions. No words. I have no words for this, and Oh. it wasn't like just my personal happiness, but it's more of a cumulative thing, a team effort, and the happiness which I see on the faces of my loved ones, especially my mother, my father, my brother, my friends, and my teachers, and everyone like who is coming to wish me, kinda. Yeah. So, did you expect that you'll be achieving a rank 3? Not exactly. I was hopeful to get in. The friends who know me from like quite a time, they were saying like you could come, like you will be in top 10. Like they used to ask me like in this question, what was your approach? The essay, how did you wrote? And the way I used to tell them that okay, I did this, and then they said you will be like among first 10 or something like that. But yeah, rank third, I haven't thought about it. Basically, I don't pay that much heed to on getting some rank, so getting qualified was enough for me. ओके ग्रेट। अच्छा बताइए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और कैसा आपका जर्नी रहा है, कैसे सिविल सर्विसेज में आने का प्लान हुआ उसके बाद? सर पहले रियली ग्रेट टू मीट यू। थैंक यू सो आप मच। यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन हो, जो आप ये चीज़ कर रहे हैं। तो जी वैसे मैं आपसे पर्सनली नहीं मिला हूँ, यू आर लाइक कश्मीर बेस्ड, लेकिन जी जी। जितना थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, तो रियली आई अप्रिशिएट योर वर्क वट एवर यू थैंक डू। यू थैंक Yeah, यू सो मच। yeah. थैंक यू So, सो मच। and I am thankful to you for like taking my interview today. So, yeah, for अपनी तरफ से देखिए, मेरा ये है कि बैकग्राउंड, माई स्कूलिंग मेरी हुई है इनिशियली इलाहाबाद में थे फादर की पोस्टिंग, तो वहाँ पे बैथनी कॉन्वेंट, एंड लेटर ऑन ही केम टू जम्मू, सो जम्मू में सेंट पॉल्स। देन माई ट्वेल्थ आई डिड फ्रॉम गवर्नमेंट रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, and after that I qualified this AAEE exam and studied in NIT Srinagar for 4 years, and there is computer science and engineering. So mine was the first batch of computer science and engineering from Srinagar. NIT। NIT. And then I got selected in this via campus placement. I got selected in Arisent Technology, Gurgaon. So therefore the next journey was in corporate life. So it was a telecom domain. I was working as a software developer, and soon enough I switched my company to Qualcomm Hyderabad. It's a semiconductor company, MNC, US MNC, and I worked as a senior software engineer in Qualcomm, and I was in Hyderabad. So during all this, somehow I felt like okay, नॉलेज तो है, सोसाइटी के काम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आना चाहिए। ऑल्दो लगता था कि टैक्सेस तो पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऑल्दो इनडायरेक्ट एफर्ट ही है चलो, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा था। तो देन आई थॉट, ब्रदर से बात की और दो तीन से बात की, एंड दे शोड कॉन्फिडेंस कि हाँ आप कर सकते हो। तो देन आई सेड व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। तो मैंने उसका ट्राई दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जब नोट्स भी बना रहा था तो लिखा नहीं जाता था एक टाइम पे क्लास में बैठा नहीं जाता था 4 घंटे के लिए, लेकिन जी आज लग रहा है कि इट वाज ऑल वर्थ इट। सो ओके। या
That's all. So I started doing this. It was my first attempt, and I think the strategy and the seniors and the guidance, whatever I got from them, it is like very very good. I can say that. So this was your first attempt and you qualified in the first attempt. आपने यूपीएससी लिखा? यूपीएससी मैंने दिया, बट आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स ड्यू टू सीसेट. सो मैथ्स अच्छा था वैसे, बट समहाउ माय स्ट्रेटजी एक्चुअली ये जे.एंड.के और उसका एग्जाम थोड़ा इन बिटवीन ही आ जाता है, साथ साथ ही आता है. बिल्कुल बिल्कुल. प्लस तो उस वजह से नहीं हो पाया, बट आई एम सेटिस्फाइड ओवर हियर. तो आपने क्या इस बारी में क्या किया आपने कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका टॉप पर आ गए, वो भी रैंक 3? तो क्या व्हाट वाज द नथिंग स्ट्रेटजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एग्जैक्ट? नथिंग जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन ये है कि जो भी मेरे गोल्स थे, जी. तो मैंने उनको डे 1 से जो था अपने सामने रखा था गोल को, और उसको अचीव करने के लिए मैंने अपना 100% दिया. लाइक इनिशियली जब मैंने जीएस स्टार्ट किया तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैंने कभी लाइफ में पहले नहीं पढ़ा था इतना डेप्थ में. 11th तक पढ़ा था शायद, हिस्ट्री ज्योग्राफी और समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी टच नहीं था, सब एकदम टेक्नोलॉजी में था. तो उसको मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया. कॉर्पोरेट में भी इतने साथ काम करने के बाद ना एक कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था. काफ़ी सारी चीज़ें थी वो ऑलरेडी, यू कैन से कि आई वाज फिल्ड अप विद ऑल दोज थिंग्स. तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी लिया, इंटर आया क्योंकि डिफरेंट डोमेन था. तो वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, उसमें क्यूरियोसिटी थी, तो बहुत अच्छे से पढ़ा. तो चीज़ों को समझ समझ के पढ़ा, पेशेंस से पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा. तो जनरली लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़ा, ये शायद सबका ही सवाल होता है. तो मेरे साथ ये नहीं था, मैंने कभी आज तक टाइम जो था उसको नोट करके नहीं पढ़ा है. यही था कि अच्छा ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो इंटरेस्ट से उसको पढ़ा. और टाइम चाहे जितना मर्जी लगा, चाहे एक दिन लगा एक चैप्टर पढ़ने में, चाहे एक दिन से ज़्यादा भी लगा, इसको मैंने ख़त्म किया. और हाँ, एटलीस्ट 10-15 डेज के बाद मैं देखता था कि इतने चैप्टर्स ख़त्म करने में मुझे कितने दिन लगे हैं, और उसको क्यूमुलेटिवली मैं एनहांस करता गया, अपनी प्रोडक्टिविटी जो थी उसको बढ़ाता चला गया मैं. तो एट द एंड तो मुझे लगता है शायद मैंने 11th एनसीईआरटी शायद एक दिन में भी, मतलब 3-4 घंटे में भी उसको खत्म कर दिया था. तो जी, तो वही, दैट्स ऑल. तो अगर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आपने कुछ किया हो, फिर मेंस में? प्रीलिम्स में ऐसा था कि थोड़ा सा सी सेट पे ज़्यादा फोकस रखा था. जीएस वाइज मुझे काफ़ी हो गया था, मतलब एक्सपीरियंस हो गया था, पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा. कट ऑफ जो था इतना ज़्यादा नहीं जाता है, आई विल बी एबल टू क्वालिफाइड. तो सी सेट पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा था मैंने, क्योंकि लगा था कि शायद सी सेट ना हो तो बाहर हो सकते हैं. तो सी सेट हो गया. मेंस के लिए ऐसा था कि ऑप्शनल पे ज़्यादा जोर दिया, ऑप्शनल को काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा. और थोड़ा सा एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, आपको बताया नहीं मैंने, तो उसमें यही पढ़ते हैं कि टू स्टडी ह्यूमंस, उसके ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएंस. तो इसमें जो वेरिएंस वाली चीज़ थी ये मैंने अलग से पकड़ ली थी कि वेरिएंस के ही मार्क्स मिलते हैं. तो आप कहीं से भी लिख रहे हैं, कोई टॉपर्स नोट्स देख रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक्स देख रहे हैं, तो अगर सब लोग वही देख रहे हैं तो फिर वो नंबर नॉर्मल ही आएंगे. तो उसके लिए फिर मैंने उसमें कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा उसमें मैंने थोड़ी एमआईटी की रिसर्च निकाली, एंथ्रोपोलॉजी में स्टैनफोर्ड की निकाली. तो जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स, उनके जो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो वो वाली रिसर्चेस मैंने स्पेशली ऐड ऑन की. ऐसा भी नहीं कि बहुत इन डेप्थ, उसके थोड़े थोड़े रेफरेंसेस जस्ट टू गिव अ वेरिएंस टू माय आंसर्स. तो उस पर मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया, काफ़ी आई विल से कि 60-70% जो एफर्ट था, तो वो मेरे एंथ्रोपोलॉजी के वैल्यू एडिशन में चला गया. तो इसके बाद फिर ये था कि हाँ, GS4 है, एथिक्स है, उसकी केस स्टडीज. जी जी. कोर रिसोर्स आपका कौन सा रहा एंथ्रोपोलॉजी के लिए? कोर रिसोर्सेज सर वेरिड हैं. एक तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, तो उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज, इग्नू रेफर किया, स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ी. तो फिर एक बहुत अच्छी बात हुई कि 2017 में ही साउथ में एक एनसीईआरटी, मतलब आई थिंक केरला की है शायद, हाँ, केरला बोर्ड की एनसीईआरटीज आ गई थी. तो उससे पहले ये अवेलेबल नहीं थी, 2017 में ही आई है. तो उन्होंने मुझे बहुत बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी काफ़ी अच्छे से कर दी. तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बेस मेरा तैयार है. अब इसके ऊपर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं. तो टॉपर्स भी थे, अनुदीप शेट्टी, एंड देन 1-2 मोर टॉपर्स वर देयर, अक्षर जैन, अपाला मिश्रा. तो उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी देखी, कहाँ से एक
लक्ष्मी जी थे, वो उनके उनके नोट्स थे, वहाँ पे काफ़ी केस स्टडीज़ वगैरह थे। तो वही पिक एंड चूज़ आगे पीछे से कि वैरायटी क्रिएट करके ही मार्क्स मिलते हैं। तो हाँ, एक सोर्स नहीं थे, देयर वर मल्टीपल सोर्सेस। या ओके। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी क्यों चुना आपने? आपका इंटरेस्ट था या बिकॉज ये जी, जी। एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअल जब मैंने तैयारी स्टार्ट की उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई ब्रांच होती भी है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो था ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल भी, सीएस इंजीनियरिंग और उसके बाद ये। तो मैंने पहले थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट किया अपना बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैं ज्योग्राफी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो लेकिन मैंने देखा ज्योग्राफी का आउटपुट काफ़ी कम है। तो फिर थोड़ा-सा मैंने थोड़ा रिस्क तो लेना ही था, लेकिन एंथ्रो जब मैंने देखा, उस ईयर भी टॉपर्स सारे एंथ्रो के थे, तो उसका सिलेबस मैंने स्टडी किया। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा यहाँ पे बायो वाली चीज़ है जो मैंने अभी तक कभी पढ़ी ही नहीं है, तो कुछ नया मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर मैंने बोला कि ये बायो वाला पोर्शन मेरा यहाँ से करूँगा मैं, इंटरेस्ट होगा तो मैं कर लूँगा। फिर सोसाइटी वाला था, वो भी मैंने कभी नहीं पहले पढ़ा था। तो मैंने ये देखा जो चीज़ मैंने पहले नहीं पढ़ी है, तो वहाँ पे मुझे एक न्यू एंगल मिलेगा, मुझे पढ़ने में क्यूरियोसिटी आएगी, तो उस हिसाब से मैंने इसे लिया। प्लस इसकी वेटेज भी है। इसका काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है, यूपीएससी में काफ़ी स्कोर अच्छा है, पीएससी में भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है। तो या ओके। और आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी? फॉर विथ केएस एंड देन जी जी केएस एंड देन फाइनेंस एंड देन पुलिस। पुलिस क्यों नहीं आपने दे दिया? आमतौर पर तो पुलिस सेकंड पे देते हैं। नहीं देते हैं, बट मुझे अपने लिए लगा कि शायद यही ठीक है। एक्चुअली मुझे इतना पता भी नहीं था तब, तो बाद में मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि पुलिस पहले देना चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है, अब माता रानी है, वो जो दिलाएगी वो दिलाएगी। टारगेट तो मेरा पहला वाला ही था, केएस ही था। बाकी दो मैंने सोचे कम ही थे थोड़े, तो उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मैंने थोड़े यूपीएससी टॉपर्स के वो देखे थे, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे थे और उनके सजेशंस देखे थे। एक यूपीएससी रैंक 3 थे, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सेंड किया था। रैंक 3 रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं उनका नाम, शायद गामिनी सिंगला है, शायद, आई कैन नॉट रिकॉल। तो उनका मैंने थोड़ा-सा देखा था, तो उनका मुझे काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें लगी उनकी टिप्स। तो मेन क्रक्स मैंने वहाँ से ये निकाला कि इंसान जैसा है, अगर वैसा ही बन के जाए, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। प्रोवाइडेड कि आप मतलब थोड़े हम्बल हैं, अच्छे काम किए हैं और आपकी पर्सनैलिटी वैसी है ऑफ़िसर वाली, और आप सच में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं दिल से, और आपने अगर पहले किया भी है। तो मैं यही टिप्स लेके गया, और इसकी मुझे जो मेरी ट्रू पर्सनैलिटी है वही रखनी है, मुझे फेक नहीं करना है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो बोल दूँगा कि नहीं आती है, अगर पढ़ी नहीं है तो बोल दूँगा नहीं पढ़ी है, पढ़ लूँगा, लेकिन जितना हूँ उतना ही प्रेज़ेंट करूँगा। तो ये मेरा बहुत अच्छा रहा। प्लस मेरा मोस्टली इंटरव्यू चला मेरे वर्क एक्स पे, तो वर्क एक्स उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ था, तो वो मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे वहाँ से एक एज मिला। फैक्चुअल क्वेश्चंस मेरे जो थे वो भी मोस्टली 1-2 को छोड़ के काफ़ी अच्छे थे, जो मुझे नहीं आते थे मैंने बहुत ईमानदारी से बोला कि मुझे नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है। तो ओवरऑल एंथ्रो ने मुझे एज दिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे सोसाइटी का काफ़ी प्रोस्पेक्टस मिला। सोसाइटी की ग्रास रूट इश्यूज़, क्योंकि केस स्टडीज़ वगैरह तो हम पढ़ते ही हैं, तो उसमें जम्मू बिल्कुल कश्मीर बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो मुझे पता थी। वैसे तो था कि एक जनरल ओवरऑल इंडिया का, लेकिन शायद पैनल के आधे मेंबर्स बाहर के थे, तो उनको जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक यहाँ की ट्राइब्स का इन डेप्थ इतना शायद उनको ना पता हो, और मैंने उनके थोड़े से जो भी उनकी जो भी नॉलेज थी उसमें अगर 1-2 चीज़ एनहांस कराई, तो उससे मुझे लगा कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे एक वॉव वाला थोड़ा-सा आ गया। फीलिंग आ गया था। तो हाँ, बहुत अच्छा था मेरा इंटरव्यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अपने शुरू का कितना कितना टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? सर ये आई थिंक ड्यूरिंग कोविड 2020 2019 19 20 हाँ 2020 के अराउंड ही मुझे लग रहा है, वहाँ से थोड़ा सा किया। फिर इन बिटवीन कोविड आ गया, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह ये सब, तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव वे में ही लिया, डिस्ट्रैक्शन से बच गया थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छा हो गया। जी तो अगर आपको किसी को बताना है, क्या आप किसी में कोई चीज़ डालना चाहते हैं कि इस चीज़ से वो जाके IAS ऑफिसर बन जाएगा, वो कौन सी चीज़ होगी? सर ऐसा तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है कि मैं किसी को बना दूं, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको सबसे पहले ईमानदारी से खुद से सवाल करना होगा कि आप बनना क्यों चाहते हैं। और
अगर आप सच में जिस पर्पस के लिए ये सर्विस बनी है और आप वही काम करना चाहते हैं, तो फिर आप ईमानदारी से इसमें कूद जाइए हम्म, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और एक बोला जाता है ना कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको खुशी नहीं हो रही वो काम करने में, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर बिल्कुल। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर आप मत कीजिए। तो अगर लगता है तो फिर, अगर नहीं लगता तो पढ़ाई से प्यार कर लीजिए। तो आप प्यार कर कर के पढ़िए पढ़ाई से, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए। जहाँ पे आपको इश्यू आता है, आज की डेट में तो इंटरनेट है, तो आपको सिर्फ सर्च करने की नॉलेज होनी चाहिए, और वो फ़िल्टर आउट करके अगर आप सही चीज़ों से पढ़ते हैं और प्लस आपके पास अगर गाइडेंस अच्छा है, आपको साथ अच्छा मिलता है अच्छे जेन्युइन लोगों का, तो आप हर्डल्स को पार करते हुए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो टाइम लग सकता है, पर होगा ज़रूर। तो मेरा पर्सनली ये था कि मैंने करना है, जब सोच लिया है करना है तो करना ही है। इस साल नहीं होता तो मैं अगले साल करता, अगले नहीं होता तो मैं उसके बाद भी करता। तो जब एक सोचा है, ठान लिया है, तो उसको मैं, जब तक नहीं होता मैं लगा रहता। जी। तो एक बिगिनर के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक बिल्कुल जो नया बच्चा है, ग्रेजुएट हुआ है और अब इसमें आना चाहता है, क्या करना चाहिए? बिगिनर के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको, अगर तो सोच लिया है करना ही करना है, तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। आप अपना जीएस अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पकड़ लेते हैं एक साथ, टेस्ट बिल्कुल। सीरीज भी साथ में पकड़ लेते हैं। अब सी सेट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सी सेट इज जस्ट पासिंग। तो उस वजह से वो काफ़ी लेट या तो सी सेट से बाहर हो जाते हैं, प्री से ही बाहर हो जाते हैं। नॉलेज उनको बहुत बहुत सारी होती है, लेकिन बाहर हो जाते हैं। कुछ मैं देखता हूँ कि वो जीएस में ही काफ़ी लगे रहते हैं, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री के बाद सोचते हैं कि ऑप्शनल पढ़ते हैं। तो ऑप्शनल तो पढ़ोगे पढ़ोगे, तुम्हें एथिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जीएस 4 उसके बिना तो नहीं होगा। ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे की तो बोलते हैं पढ़ ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे के लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी, मुझे बताइए कि इज द जर्नी नाउ, डज द जर्नी एंड हियर और डू यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी एज वेल? नो, इट एंड्स हियर। ओके, या सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट? नो। आप ग्रास रूट पे ही यू वांट टू वर्क, हाँ? जी, मेरा शुरू से यही था कि मुझे या टुवर्ड्स माय किड्स, मुझे मतलब यहीं पे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स काफ़ी ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल। मेन मोटिव में मेरा यही था वापस आने का। एक एक फैक्टर ये भी था, क्योंकि ब्रदर मेरा छोटा, वो डॉक्टर आकाश, तो वो हम्म। पहले यहीं से उनकी एमबीबीएस हुई, तो ही वाज देयर टू लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। तो फिर ही गॉट सिलेक्टेड इन एम्स फॉर हिज पीजी, तो उन्हें जाना पड़ गया। तो फिर मैं पेरेंट्स को थोड़े दिन लेके गया बाहर, बट उनको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो नाउ आई थिंक थॉट कि ये सबके लिए अच्छा है। जी, जी। तो इस वज़ह से मैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहीं पे घर पे। जी। नहीं, हमें आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, हाँ, बिकॉज अब काफ़ी टाइम हो गया, वी जस्ट वांट द ब्यूरोक्रेसी नाउ टू स्केल अप। और आपके इतने टाइम से, किसने पिछले 30 सालों से पीपल जस्ट वांट टू सी अ चेंज नाउ, बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट्स हैव बिकम अ नाइटमेयर। तो अगर आप जैसे यंग ऑफिसर्स विल बी देयर टू मेक इट मोर एफिशिएंट, सो इट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर द सोसाइटी। या आई थिंक द रिजल्ट्स आर हियर। गवर्नमेंट जो कर रही है पिछले टाइम से, तो वो सामने दिख रहा है। अभी आप बिल्कुल। देखिए ना, कितनी ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम हुआ है, कितनी जल्दी रिजल्ट आ गया। तो हमें वेट बिल्कुल। नहीं करना पड़ा। इन पास तो मैं तो ख़ैर टच में नहीं था जो लोग ये एग्ज़ाम दे रहे थे, बट आई हैव सीन कि डिलेज़ होता है। और दूसरा जो आपने बोला मेरी तरह, मेरा तो यही ओपिनियन है कि आपकी तरह हमें बंदे चाहिए आज की डेट में, यूथ के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं आपसे किसी ना किसी ज़रिए से कम्युनिकेट करूं और आपको ये बताऊं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। और भगवान आपको ज़रूर इस चीज़ का आशीर्वाद देगा, और थैंक एक दिन मतलब आप देखिएगा कि आपकी वजह से कितने जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो सोसाइटी की सेवा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज आप देना चाहे लोगों के लिए, तो जो आपको देख रहे हैं? सर, मैसेज तो मतलब यही है सबके लिए कि आप लोग जो भी है ईमानदारी से कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं, तो भगवान भी आपसे खुश रहेगा, और आप जिस काम को करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मेरे साथ तो यही था। मुझे तो यही लगता है कि मेरे पेरेंट्स की ही दुआएँ हैं। मेरी मदर ठीक भी नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा-सा बैक का इश्यू था, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है इस जर्नी में।
भाई का सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था। तो यही है कि आप जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो। अगर आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, फिर आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैराथन है। इसमें 1.5-2 साल तो वैसे ही बीत जाता है, लग पता भी जाता है। नहीं चलता है। तो सही इस बात। सर्कल से, इस चक्रा से आप जब बाहर निकलोगे तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में आपने ये जो क्रूशियल यंग एज है ये उसके साथ क्या किया है, क्या आपने उसको प्रोडक्टिव बनाया है, तो या फिर इट वाज ऑल वेन। मतलब आई नो क्विंटेसेंस, यू आर द फेस ऑफ क्विंटेसेंस। तो यही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज कंडक्ट कराए थे, मैंने उनको भी देखा था, लेकिन आपने जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपने डाले थे तो वो काफ़ी अच्छे थे। उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलता है। मेंबर्स थे आपके बोर्ड में जो ले रहे थे, मैंने देखा था काफ़ी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स थे। आप खुद, आपके जो सवाल पूछने का अंदाज था वो एनालिटिकल था, फैक्चुअल नहीं था, जहाँ पे ट्रू पर्सनैलिटी निकल के आती है जो कि एक इंटरव्यू की डिमांड है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव नथिंग टू ऐड अपॉन दैट। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब फॉर द सोसाइटी। या थैंक यू सो मच। आपके आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी शुक्रिया मदर के लिए शुक्रिया मेरी तरफ शुक्रिया, से थैंकफुल टू यू। मदर के लिए मेरी तरफ से सलाम है। ठीक है। जी शुक्रिया अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अल्लाह और चमकाए। जी, थैंक यू वेरी मच जी।